میرے چھوٹے چچا سے سب گاؤں والے ڈرتے تھے کیونکہ گاؤں کی عورتیں تو کیا مرد بھی انہیں کالا ناک کہتے تھے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا سب لوگوں کو چچا کو کالا ناک کہتے ہی سنا تھا۔ پہلے تو مجھے یہ تک معلوم نہ تھا کہ ناک کیا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم گاؤں کے رہنے والے تھے اور گاؤں کے کھیت کھلیانوں میں سانپ اکثر ہوتے تھے، اسی لیے ایک بار جب میری عمر 12 سال کی تھی، میں اسکول سے گھر آتے ہوئے کھیتوں کے بیچ سے گزر رہی تھی۔ میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ تھیں۔ ہم باتوں میں مصروف تھے جب میری دوست نجمہ نے کالا ناک کی رٹ لگاتے ہوئے ہانک لگائی۔ اس کی نظریں کھیتوں کی جانب تھی۔ جب ہم سب نے نجمہ کی نظروں کا تعاقب کیا تو ہماری جان ہی نکل گئی۔ میں نے پہلی بار وہاں سیاہ رنگ کا سانپ دیکھا۔ ہم سب لڑکیوں کی جان پر بن گئی۔ ہم لوگوں نے الٹے قدم پیچھے کی جانب دوڑ لگا دی۔ ہم سب سہیلیوں کی سانس ہمارے سینے میں تھم گئی تھی۔ ہم نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور بھاگنے لگی۔ اتنا تیز بھاگی کہ پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا۔ واپس اسکول پہنچ کر ہی ہمارے قدم رکے تھے، لیکن جب ہم نے پلٹ کر دیکھا تو وہ سانپ کہیں نہیں تھا۔ ہم سب کے ہاتھ اپنے سینوں پر تھے۔ تب مجھے پتا چلا کہ اسے کالا ناک کہتے ہیں۔ ہم تو شارٹ کٹ کے چکر میں کھیتوں سے گزرتی تھیں تاکہ بیچوں بیچ راستہ طے کر کے جلد گھر پہنچ جائیں، لیکن کیا معلوم تھا کہ وہاں کالا ناک دیکھنے کو مل جائے گا۔ مگر اس دن کے بعد سے تو ہم نے توبہ کر لی اور کچی سڑک سے ہی گھر جانے کو ترجیح دی۔ یہ بات جب میں نے امی کو بتائی کہ ہمارے پیچھے کالا ناک لگ گیا تھا، اس وقت چچا بھی وہیں دسترخوان پر بیٹھے تھے، کھانا کھا رہے تھے۔ یہ سن کر ان کا نوالہ ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ کہنے لگی، تم کیوں کھیتوں کے راستے سے آئی ہو؟ میں نے کہا، مجھے کیا پتا تھا کہ وہاں سانپ ہوگا۔ میرے چچا پریشان سے ہو گئے، کھانا وہیں چھوڑا اور گھر سے باہر نکل گئے۔ چہرے سے لگ رہا تھا جیسے کوئی انہونی سی بات ہوئی ہو، ورنہ گاؤں اور کھیت کھلیان میں سانپوں کا آ جانا کوئی نئی بات تو نہ تھی۔ میں نے جب اپنی چچی کی طرف دیکھا تو ان کی رنگت بھی اڑی ہوئی تھی۔ مجھے کچھ تشویش سی ہونے لگی کہ چچی کیوں اتنی پریشان کھڑی ہیں۔ میری اماں مجھے ڈانٹنے لگی کہ کیا ضرورت تھی اپنے چچا کے سامنے یہ سب کہنے کی۔ مجھے اماں کی یہ بات سمجھ نہ آئی۔ میں نے کھانا کھایا اور سو گئی۔ شام کو چچا واپس آئے تو بہت نڈھال سے تھے۔ ان کے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ آتے ہی چارپائی پر گر گئے۔ میری چچی منہ میں بڑبڑانے لگی، کہنے لگی، چڑھ گیا ہوگا اب تمہیں بخار، نہ تم باز آؤ گے نہ ہی میری جان سکون میں آئے گی، اب زندگی تو تم میری مشکل میں ڈالو گے، اسی سانپ کو مار کر آ رہے ہوگے۔ یہ کہہ کر وہ چچا کو سہارا دیتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گئی۔ میں یہ سوچنے لگی تھی کہ بھلا بخار سے چچی کی زندگی کیسے مشکل میں جا سکتی ہے، اور چچا تو دوپہر کو تو بالکل ٹھیک ٹھاک باہر گئے تھے، ایک سانپ کو مار کر وہ بیمار کیسے ہو سکتے تھے۔ اگلے روز دوپہر کو ہمارے گھر چوڑیوں والی آ گئی۔ میری ماں کو کانچ کی چوڑیاں بہت پسند تھیں۔ انہوں نے بہت ساری چوڑیاں اپنے لیے خریدی۔ اسی اثنا میں میری چچی بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ ان کے چہرے پر سارے زمانے کی بیزاری چھائی ہوئی تھی، آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھیں۔ امی نے چچی سے کہا کہ زلیخا چوڑیاں خرید لے، دین محمد کو بڑا چاو رہتا ہے کہ تو چوڑیاں پہنا کرے، پر ایک تو ہے کہ… اما نے چچی سے کہا تو چچی سر ہلانے لگی۔ جانے بھی دو بھابھی، اس کالے ناک کا اصل روپ صرف میں ہی جانتی ہوں، میرے دل میں اب ایسے کوئی ارمان نہیں رہے۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے صحن میں بنے غسل خانے میں چلی گئی۔ ہمارے گاؤں کے گھروں میں غسل خانے کمروں سے باہر بنے ہوئے تھے۔ امی نے چچی کی طرف الٹا ہاتھ مارتے ہوئے منہ میں بڑبڑائیں، ناشکری عورت، اتنا تو خیال رکھتا ہے وہ اس کا، لیکن یہ ہے کہ کسی بات سے راضی ہی نہیں ہوتی۔ میری چچی گھر میں سب کے ساتھ اچھا رویہ ہی رکھتی تھی، سوائے چچا دین محمد کے۔ دادا دادی ہمارے انتقال کر چکے تھے۔ میرے ابا اور چچا دین محمد دو ہی بھائی تھے، اسی لیے ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ چچا کی شادی کو چند سال ہوئے تھے، لیکن ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ چچی کہتی تھی کہ یہ کالا ناک ہے، اپنے بچوں کو بھی کھا جائے گا، اچھا ہے کہ یہ بے اولاد ہی رہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری چچی کے ساتھ مسئلہ کیا تھا، وہ کیوں چچا سے اتنی خار کھاتی تھی۔ مجھے شروع سے ہی اپنے چچا سے بہت پیار تھا۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، میں سب سے بڑی تھی، اسی لیے چچا بنسبت باقی بھائیوں کے مجھ سے زیادہ پیار کرتے تھے، کیونکہ میں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ لیکن جب بھی چچا مجھے محبت سے اپنے ساتھ لگاتی تو میری والدہ اور چچی کی رنگت اڑنے لگتی۔ امی بار بار مجھے یہ سمجھاتی کہ تم چچا سے ذرا فاصلے سے رہا کرو۔ پھر میں جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی فاصلہ خود بخود ہی بڑھتا گیا۔ میری عمر اب 16 برس کی ہو گئی تھی۔ چچا اور ابا کے بیچ بٹوارا ہو چکا تھا، ہمارے گھر کے بیچ بھی دیوار کھڑی ہو چکی تھی، زمینیں بھی الگ ہو چکی تھی، لیکن چچا چچی سے میری محبت اور ہمارا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا اب بھی قائم و دائم تھا۔ یہ بٹوارا بھی بڑی محبت اور باہمی رضامندی سے ہوا تھا۔ اب میں بہت سی باتوں کو سوچنے لگی تھی۔ پہلے میں نے ان باتوں کی طرف کبھی توجہ نہیں دی تھی، جیسے اب دینے لگی تھی۔
लोग अब भी मेरे चचा के नाम से खौफ खाते थे। औरतें जब चचा को घर पर देखती तो चची के घर से वापस लौट जाती। मैं अब इस बारे में सोचने लगी थी कि आखिर लोग मेरे चचा को काला नाग क्यों कहते हैं और चचा से खौफ क्यों खाते हैं। मेरे चचा दिखने में गोरे चिट्टे गबरू जवान थे, बात भी बड़े प्यार से करते थे। मैंने आज तक उन्हें किसी से लड़ते झगड़ते भी नहीं देखा था। हाँ, एक बात मेरे चचा में जरूर थी, उनकी आंखें। उनकी आंखें हर वक्त सुर्ख रहती थी और वो अपनी आंख की काली पुतलियां बड़ी तेजी से घुमाते रहते थे, जो कि किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। अव्वल तो मेरे चचा को बहुत कम ही किसी पर गुस्सा आता था, लेकिन जब गुस्सा आता तो उस वक्त तो मेरी चची भी कांप कर रह जाती, वरना तो हर वक्त वो चचा को कोसने ही देती रहती थी। 10वीं पास की तो अम्मा ने पढ़ाई छुड़वा कर सिलाई सीखने के लिए मुझे एक औरत के घर भेजना शुरू कर दिया। घर के बहुत से काम अब मेरे जिम्मे डाल दिए थे। रात को मेरे चचा आधे घंटे के लिए ही सही, लेकिन हमारे घर जरूर आते थे। चारपाई पर बैठकर अब्बा से खेती बाड़ी के बारे में ही बात करते रहते और साथ में हुक्के की गुड़गुड़ भी होती और मुझसे कहते, रानी पुत्र दूध पत्ती की चाय तो पिला। अपने चाचे को मैं भी दूध काढ़ काढ़ कर चाय बनाकर प्याला भर के चाचा को पिलाती। वो मेरे सर पर शफकत से हाथ रखते दुआ देते, जीती रह धीरानी, सोना रब तेरा नसीब अच्छा करे। मैं वहीं सेहन में खाने के गंदे बर्तन मांज रही थी जब अब्बा की एक बात ने मुझे हैरत में डाल दिया। वो चचा से कहने लगे, दीन मोहम्मद तेरी मौजें हैं, तेरे खेतों में तो सांप बिच्छू कदम भी नहीं रखते, तो खुद जो काला नाग है। अब्बा की बातें सुनकर मेरे भी कान खड़े हो गए और मैं कान लगाकर बातें सुनने लगी। आखिर ये कैसी बातें बताई थी अब्बा ने भला? ऐसा कैसे मुमकिन था कि सांप बिच्छू सबके खेतों में ही नजर आ जाया करते थे? और सांप बिच्छू बेजबान और अक्ल खुर से बेगाने जानवरों को भला क्या पता कि किसकी जमीन पर जाना है और किसकी जमीन पर नहीं जाना? पर चचा की जमीन पर क्यों नहीं जाते थे? रात देर तक मैं पहले तो इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करती रही। फिर मुझे लगा हो सकता है कि अब्बा मजाक कर रहे हों, लेकिन मुझे बचपन की भी ऐसी बहुत सी बातें याद आने लगी जो बचपन में मैंने सुनी थी लेकिन गौर नहीं किया था। जब अम्मी ने मेरे चचा के लिए रिश्ता देखना शुरू किया था तो गांव का कोई भी फर्द अपनी बेटी मेरे चचा को देने को तैयार ना था। कहते थे ये इंसान नहीं सांप है। मेरा चचा काफी दिल बर्दाश्ता हो चुके थे। मेरी चची जुलेखा दूसरे गांव से थी। चचा की इस बात से नावाकिफ थी कि वो इस गांव में किसी नाम से मशहूर थे, लेकिन जब शादी होकर हमारे घर आई अगली सुबह बहुत रो रही थी। मेरी वालदा से कहने लगी, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझसे सच छुपाया है। मेरी वालदा उस वक्त मेरी चची की दिलजोई करने लगी। मैं उस वक्त इन बातों से बिल्कुल अनजान सी थी। उस वक्त तो बस अपनी नई चची को देखने के शौक में मैं उनके कमरे में गई थी तो चची को रोता देख कमरे के बाहर ही खड़ी हो गई। ये बात सुनी और बिना सोचे समझे बाहर खेलने चली गई। लेकिन आज एक एक बात मुझे याद आ रही थी। मेरे अंदर एक तजस्सुस सा बढ़ने लगा था। एक बार मैं अपनी सिलाई वाली के घर पर सिलाई सीख रही थी जब मैंने वहां आई चंद औरतों को देखा जो मेरी उस्तानी से कपड़े सिलवाने आई थी। मुझे देखकर मुस्कुराने लगी, फिर मेरी उस्तानी से कहने लगी, लड़की तो बड़ी प्यारी है, किस घर की है हमें बताओ, अपने बेटे के लिए रिश्ते की बात चलाऊंगी। उस्तानी ने तंजिया लहजे में कहा, दीन मोहम्मद की सगी भतीजी है, जाके काले नाक से मांग ले रिश्ता। ये सुनते ही वो औरतें घबरा गईं और तौबा तौबा करके अपने कानों को हाथ लगाने लगी। उस घर से तो वो मुझे यूं देखकर भाग गईं जैसे मैं अपनी चचा की तरह काला नाग बन चुकी हूं। मैंने अपनी उस्तानी से पूछ ही लिया कि आखिर गांव वाले मेरे चचा से इतना खौफ क्यों खाते हैं। मेरी बात सुनकर उस्तानी ने मुझे बड़े ताज्जुब से देखा था। कहने लगी कि क्यों, तुम्हें नहीं पता? मैंने कहा, ऐसी भी क्या बात है जो मुझे आप बता नहीं सकती? मुझे वाकई कुछ नहीं पता। वो मुझे हैरत से आंखें फाड़े देखने लगी। कहने लगी, अपनी माँ से पूछ लेना कि कैसा है तेरा चचा। मेरी उस्तानी ने भी गुस्से से ये बात कही। मैं बड़े बुझे दिल से वापस आ गई। आते ही मैंने अपनी सिलाई का बैग एक तरफ रखा और अम्मी के पास आकर बैठ गई। फिर अम्मी से पूछा कि मुझे सच सच बताएं कि चचा को काला नाग क्यों कहते हैं। मेरी बात सुनकर मेरी माँ मुझे कनखियों से देखने लगी। कहने लगी कि आज कौन सा भूत सवार है तुझ पर जो आते ही उल्टे सवाल कर रही है। मैंने उन्हें उस्तानी की सारी बात बता दी। वो कहने लगी, दफा कर ऐसे लोगों को, वैसे भी मैंने तेरा रिश्ता कौन सा उस गांव में करना है। तेरी बात मैंने बचपन से अपने भाई के घर पक्की कर दी थी। मैंने कहा, बात मेरे रिश्ते की नहीं है, मुझे ये राज जानना है, क्यों सब लोग चचा को काला नाग कहते हैं। मेरी वालिदा पहले तो मुझे गुस्से से घूरती रही और फिर सख्त लहजे से कहने लगी कि
खबरदार जो ये सवाल तूने मुझसे दोबारा पूछा। तू चल हांडी चढ़ा जाकर। रात को चचा घर आए तो कहने लगी, रानी चाय बना दी, आज सर में बहुत दर्द है। मैंने चाय बिल्कुल गायब दिमागी से बनाई थी, बार बार चचा को ही देख रही थी। मेरी माँ मुझे ही नहीं मेरे भाइयों को भी चचा से दूर रखती थी, कहती थी चचा के करीब मत जाया करो। मेरा ज़हन उस वक्त बहुत उलझा हुआ था। मैंने चाय की प्याली चचा को दी। उन्होंने एक घूंट भरा तो बुरा सा मुंह बनाकर कहने लगे, रानी पुत्र तूने चीनी नहीं डाली चाय में? मैंने कहा, चचा जी डाली तो है, लाएं दिखाएं मुझे। ये कहकर मैंने फौरन से चचा के हाथ से चाय की प्याली ली और मुंह को लगाने लगी ताकि ये देख सकूं कि चाय में चीनी डाली थी कि नहीं। जब मेरे अब्बा ने मेरे हाथ को बुरी तरह से परे झटक दिया, कब दूर जा गिरा और चाय मेरे हाथ से छलक गई। मेरा हाथ जल गया था और अब्बा गुस्से से मुझे खा जाने वाले अंदाज में देख रहे थे। मैं रोने लगी। अम्मा भी कमरे से बाहर आ गईं। अब्बा कहने लगे, चल दफा हो यहाँ से। मुझे ये समझ नहीं आई कि अब्बा ने मेरे साथ क्या किया था। एक तो मेरे हाथ को झटक कर चाय मेरे हाथ पर गिरा दी और मुझे ही डांट भी रहे थे। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। चचा अब्बा को समझाने लगे कि बच्ची है, इससे क्या खबर भाई साहब, रानी को यूं ना डांटा करो, मुझे बुरा लगता है, वो तो बच्ची है, गलती मेरी थी। ये कहकर चचा चले गए। मुझे अब भी ये बात समझ में नहीं आई थी कि गलती क्या थी। मैं रात देर तक रोती रही। अगले रोज मैं चच्ची के घर चली गई। बस एक दीवार का ही तो फासला था। इस बार मैं पक्का इरादा करके गई थी, सच जाने बिना वापस नहीं आऊंगी। मैंने चच्ची से ढेरों सवाल कर दिए और रो भी रही थी कि आखिर आप चचा से इतना बेजार क्यों रहती हैं और चचा को सब काला नाक क्यों कहते हैं। मैंने चच्ची को अपनी उस्तानी की सारी बात भी रोते हुए बताई, अब्बा की रात वाली बात भी बता दी, अपना जला हाथ भी दिखाया। चच्ची चुपचाप मेरी सारी बातें सुनती रही। फिर कहने लगी, आज की रात यहाँ रुक जा, मैं दरवाजा खोलकर सोऊंगी, तुम देख लेना। मैं रात चच्ची के घर पर ही रुक गई। रात चच्ची ने कमरे का दरवाजा खुला रहने दिया। जब मैंने छुपकर झांक कर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। काला नाग। चच्ची ने कमरे में जाने से पहले शीशे के जग में दूध डाला और मुझसे कहने लगी, तेरे चचा फीका दूध नहीं पीते ना ही फीकी चाय, और ये दूध फीका है। रात 1 बजे कमरे में झांक कर देख लेना, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। चच्ची सो चुकी थी और चचा नमाज पढ़ रहे थे। 1 बजे तक जाए नमाज पर ही बैठे रहे। इसके बाद 1 बजे उठे और दूध का जग मुंह को लगा लिया, लेकिन अगले ही लम्हे दूध फीका होने की वजह से उसी दूध के जग में जरा सा थूक दिया। ये एक बेख्तियारी सा अमल था, लेकिन दूध की रंगत नीली हो चुकी थी, जैसे उस दूध में जहर डाल दिया हो। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं वहीं से पलटकर वापस आ गई। अगले रोज मुझे चच्ची ने बताया कि तुम्हारे चचा बचपन में बहुत बीमार हुए थे, यहाँ तक कि मरने के करीब थे। उनका इलाज एक हकीम ने सांप के जहर से किया था, क्योंकि इस बीमारी का वाहिद इलाज ही सांप का जहर था। लेकिन सांप के जहर की दवा की बहुत कम मिकदार तुम्हारी दादी तुम्हारे चचा को देती थी। एक बार तुम्हारी दादी घर नहीं थी। दीन मोहम्मद की तबीयत बिगड़ी तो उसने उस दवा की शीशी को मुंह लगाकर पी लिया। इस तरह जब भी उसकी तबीयत खराब होती वो शीशी को मुंह लगाकर पी लेता। तुम्हारे चचा के अंदर जहर की मिकदार बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो इस जहर का आदी भी हो चुका था। एक बार गली में खेलते हुए तुम्हारे चचा की किसी बच्चे से लड़ाई हो गई। तुम्हारे चचा ने उसे दांत काट दिए। वो लड़का उसी वक्त तड़पने लगा और उसके मुंह से झाग निकलने लगी। कुछ देर में ही वो मर गया। बहुत शोर शराबा हुआ। जब ये बात उस हकीम तक पहुंची तो उसने बताया कि दीन मोहम्मद के वजूद में जहर भर चुका है। ये जिसे भी काटेगा वो मर जाएगा, जो शख्स भी इसका झूठा खाएगा वो भी मर जाएगा। इसीलिए सब गांव वाले तुम्हारे चचा से डरते हैं, कोई उनके पास नहीं जाता। मैं एक बेवा औरत थी। मुझे तुम्हारे चचा ने बस इसीलिए शादी की कि मुझे सहारा देने वाला कोई न था। लेकिन शादी की रात ही कह दिया था कि वो मुझे मेरा हक नहीं दे सकते, वरना मैं मर जाऊंगी। वो सिर्फ मुझे सहारा देने के लिए ब्याह कर लाए थे। बस यही वजह थी कि तुम्हारी माँ ने तुम बहन भाइयों को भी दीन मोहम्मद से दूर रखा कि कहीं प्यार से वो तुम लोगों को गलती से काट न ले या अपना झूठा न खिला दे। फिर कहने लगी, वो रोज रात के कई घंटे नवाफिल पढ़कर यही दुआ करता है कि उसके अंदर से इस जहर का असर जायल हो जाए। एक दूसरे हकीम से इलाज भी करवा रहा है, जिसने उम्मीद दिलाई है कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा।